Today we have a very special guest with us. She is India's top celebrity tarot card reader, numerologist, and director of Divine Energy Bliss. She has healed and worked with huge Bollywood stars like Shah Rukh Khan, Akshay Kumar, Katrina Kaif, to just name a few. So, not wasting any more time, let us please invite with us Miss Tara Malhotra. Put your hands together for Miss Tara Malhotra. Welcome, Miss Tara Malhotra ji. How are you? I'm good. Thank you, Manpreet. Thank you for having me here. It's my pleasure, totally my pleasure to have you over here today, and especially in this series, which is Energize Your Mind. You're a person who's perfect for this. You fit the bill. So it's wonderful, and I can't wait to have this conversation today with you. So let Absolutely, us start off absolutely. today and let everyone know आपकी ये journey कैसी रही है from childhood. Were you a special or a blessed child? और आप कैसे इस profession में आए? What was it all like? Let us know. Thank you, Manpreet, for putting up this question because a lot of people they think कि कहीं ना कहीं से आपको blessings मिलती हैं या कहीं ना कहीं से आप चुने होते हो वो बिल्कुल एक सही बात है बिकॉज हम सब इस वर्ल्ड में आते हैं डिफरेंट डिफरेंट कर्मास के साथ डिफरेंट डिफरेंट एनर्जीज के साथ और जो हमारा लाइफ पाथ होता है वो हमारा बचपन से ही कहीं ना कहीं बहुत सारे लोगों का बचपन से ही डिफाइंड होता है and I think Right. I have been blessed in that way. I have been handpicked in that way because from childhood only I used to get dreams. I used to see visions. I used to see in my dreams what will happen next. And I used to tell my parents कि अब हम इनके घर जाएंगे तो आज आपसे ये बात करेंगे. And they were like, तुझे कैसे पता? How do you know that they will speak this? So I used to say, I Right. मुझे पता है, and then and sometimes it used to happen कि I used to tell them कि after 6 months or maybe in the coming time we will go to this place, whereas कहीं कभी वहीं जाने का जिक्र भी नहीं होता, and we used to land up at that place and वही sequence of events हुआ करते थे. So earlier, but then being from a very conservative Sikh family, wherein you don't encourage, such things, and wherein we are brought up in a particular way, wherein which is very conservative, and we believe only in our holy book and our gurus. So these things were never encouraged in my family, and it was a joint family where there were about 20-30 people living in the same family. So it was never encouraged, but there was something which I always used to tell my mother. There was some, these visions. There, people who used to pass away, they used to come, give me messages, ask for things, and I used to tell my mom that he needs this or this person needs that, and they used to go that place and see कि actually वैसा हुआ होता था उस फैमिली में ऐसी ट्रेजेडी हुई होती थी. So obviously my parents knew about the blessings that I had, the messages I used to get, but it was not very encouraged. And they always used to say कि पाठ करो और थोड़ा उधर ध्यान पढ़ाई की तरफ ध्यान लगाओ and all that. But then obviously I was a very a brilliant student throughout my school life as well, college life as well, and I landed up. I did engineering and I did MBA, and then I landed up into a very leading media group, which is Times of India. I worked there for Okay. about 10 years, but then Okay. during my journey also, I used to read a lot of books because I used to get messages automatically. When I used to see visions with my open eyes and my closed eyes both. I used to see things, beyond a normal person's energies. I used to sense Right. energies from the very early age, maybe when I was about 6 to 7 years old. Since then, I have started sensing and analyzing the energies and getting dreams. So when I was doing my job, I was constantly pulled towards this this spiritual world, this spiritual realm, angels, cards, Right. numbers, energies. So then I decided to learn it professionally, learn it, and take formal guidance, professional guidance, to channelize my energies in the proper way. And then I Right. found my gurus, and I found my masters, and then the journey started from 2010. It took about 10 years, and then I left my job in between because I decided to Okay. take this as full time.
and here I am in front of you, doing all these things, helping people the best possible way I can. That is such a wonderful and beautiful journey, I would say. But Yes. is it true that these things sometimes even scare people, like having these extra intuitive senses and seeing things, smelling things? It does happen with people. तो उस केस में लोग क्या करें? हर कोई तो इसको प्रोफेशनली लेता नहीं. What does it mean? And उसको क्या कर सकते हैं इन सेंसेस को जो वो लोग फील कर रहे हैं? देखो, आपका कहना बिल्कुल ठीक है कि बहुत लोग इस चीज़ से डरते भी हैं, बिकॉज़ उनको समझ हम्म. नहीं आता कि ये चैनलाइज़ कैसे करें इन एनर्जीज़ को, या राइट. इन मैसेजेस को कैसे इंटरप्रेट किया जाए। बट हम्म. अगर हम इसको पॉजिटिव वे में समझें, दो इसकी नेगेटिव implications भी हैं, because if something is to happen and you are knowing that, and beforehand, so obviously that kind of stress or that kind of energies ऑटोमेटिकली वो इंस्टेंस जो 1-6 महीने बाद होना है वो आपको पहले ही पता चल जाएगा, तो ऑटोमेटिकली आप डिस्टर्ब होते हैं। when बिल्कुल. you start living those with those energies, and we should always cherish जो चीज आपको मिली है, there are so many people in this world, एंड राइट. अगर आपको चुना गया है, अगर आपको वो ब्लेसिंग मिली है, so it means that you are somebody who's special. So we should always accept what is given to us. What is हर true? कोई, there are so many people who play cricket, बट हर कोई क्रिकेटर नहीं बनता, हर कोई क्रिकेट टीम के लिए वर्क नहीं करता। राइट. देयर आर राइट. सो मेनी पीपल जो डॉक्टर का एग्जाम देते हैं, बट हर कोई सर्जन नहीं बनता, हर कोई डॉक्टर नहीं बनता। तो हर एक की डेस्टिनी होती है और आपको उस चीज के लिए चुना जाता है। सो जो बिल्कुल. गिफ्ट हमें मिला है, अगर हमें हम्म. इंट्यूशंस आ रही हैं, अगर हमें विजन्स आ रहे हैं, अगर कई लोग बात कर पाते हैं क्लियर, इन सब एनर्जी से, तो हमें इनसे डरना नहीं चाहिए। वी शुड एक्सेप्ट इट, एंड वी शुड फील हैप्पी दैट वी आर द चोजन वन, वी आर द ब्लेस्ड पीपल who God has chosen to help other people. दूसरों को राइट. हेल्प करने के लिए आपको गॉड ने चूज किया है, सो मे बी राइट. वी शुड हैप्पीली एक्सेप्ट दैट, एंड उसको हेल्प करने की इंटेंशन से अगर हम लेंगे तो हमें डर नहीं लगेगा। बिल्कुल, ये बात आपने बिल्कुल सही कही है कि आई थिंक सो ये करोड़ों में से कोई होते होंगे जिनको ऐसे नेचुरली मिलते हैं, ऐसे गिफ्ट जिसे हम कह सकते हैं। हम्म। बट आई गेस इन गिफ्ट्स को आप होन भी कर सकते हो, आप इनको लर्न भी कर सकते हो। तो आई थिंक आप भी ये करवाते हैं, लोगों को ये चीज़ें लर्न भी करवाते हैं आप अपने उसमें डिवाइन एनर्जी ब्लिस में? यस, डिवाइन एनर्जी ब्लिस के अंदर बहुत सारी ब्रांचेस हैं, लाइक प्रोडक्ट्स हैं, कंसल्टेशंस हैं, सर्विसेज हैं, हीलिंग्स हैं, एंड वन पार्ट इज सेंटर फॉर ऑकल्ट एंड स्पिरिचुअल लर्निंग, wherein we ओके. train people in all these modalities, चाहे रेकी हो, न्यूमरोलॉजी, tarot card reading, all these spiritual modalities are taught under this banner, which is Center for Occult and Spiritual Learning, which is a unit of Divine Energy Bliss. Because हर एक, ऑब्वियसली जैसे आपने कहा, बॉर्न नहीं होता हर कोई इस चीज से, बट राइट. हर हर किसी किसी के अंदर इच्छा होती है, और कभी कभी देख, मेरा ऐसा मानना है कि अगर आप ये सीखने का सोच रहे हो, तब भी आप चोजन वन हो, तब भी आपके लिए वो पार्ट डेस्टाइंड है, वरना आप वो क्यों राइट. सोचते? आप सही डॉक्टर बात. बनने का क्यों ना सोचते? आप टीचर बनने का क्यों नहीं बिल्कुल. सोचते? आप इसी फील्ड में क्यों आना चाहते हैं? बिकॉज आना चाहिए. कई चीज यस, कई चीजें आपको मिलती हैं और कई आप अपना रास्ता खुद बनाते हैं, तो वो बना रास्ता भी भगवान ने ही चुना है आपके लिए, चाहे वो राइट. डायरेक्टली चुना है या इनडायरेक्टली चुना है। So that is my thinking, and that is why I teach these modalities. Anybody who is interested can obviously come and join us. वंडरफुल. एंड आपसे वैसे ही इतनी अच्छी पॉजिटिव वाइब्स आ रही हैं तो नेचुरली आपके स्टूडेंट्स भी वही लेते होंगे आपसे. इट्स वंडरफुल. तो आप ये बताइए कि ये नंबर्स का क्या खेल है? हाउ डू दे एक्चुअली हेल्प अस इन लाइफ या मे बी क्रिएट मोर प्रॉब्लम्स फॉर अस? थोड़ा सा उसके बारे में बताइए. नंबर्स हमारी लाइफ में अगर आप देखिए हर जगह है, इवन जो आपके नाम के अल्फाबेट हैं उनकी भी न्यूमेरिकल वैल्यूज होती हैं, राइट? ओके. और फॉर एग्जांपल, लेटर ए हैज न्यूमेरिकल वैल्यू 1, लेटर जी हैज न्यूमेरिकल वैल्यू 7। हर हम्म. एक लेटर की एक न्यूमेरिकल वैल्यू है, तो हम चारों तरफ से नंबर से घिरे हुए हैं। मोबाइल नंबर राइट. आपके पास है, आप सिग्नेचर करते हैं, उसके हर लेटर की एक वैल्यू है।
और उसका एक टोटल है, आपका नाम का एक टोटल है, जिस डेट पे आप पैदा हुए हैं, जिस टाइम आप पैदा उसका हुए भी हैं, देर ऑल नंबर्स, देर ऑल नंबर्स. सो राइट। नंबर्स प्ले अ वेरी वाइटल रोल इन आवर लाइफ्स. एंड अगर हमारे पास पास हमारे फ्रेंडली नंबर्स हो, वो नंबर्स हमारे आसपास हों जो हमारे लिए फ्रेंडली है, जो हमारे हमारे लिए कंपैटिबल है, तो डेफिनेटली हमारा पाथ इजी होता है, मुश्किल नहीं होता. बट अगर हम गलत कॉम्बिनेशंस ले लें, कई लोगों को बहुत पीपल थिंक इट इज अ वेरी वीआईपी नंबर कि 777 ले लिया, 444 ले लिया, या कार के अंदर 222 ले लिया. राइट कई लोग ऐसे करते हैं, मोबाइल नंबर के अंदर राइट। 99999 बहुत सारे ले लेते हैं. सो देन दे बिकम अ प्रॉब्लम, then they don't ओह act friendly, then they become a problem for you. ओके। एंड उसका रीजन ये है कि बहुत छोटा सा एक एग्जांपल है, शुगर हम सबकी बॉडी में चाहिए होती है, आप भी खाते हैं, मैं भी खाती हूँ. बट अगर आप कम शुगर खाओगे तो आपको लो बीपी या लो शुगर होगा, और अगर आप ज्यादा शुगर खाएंगे तो आपको डायबिटीज हो जाएगा. तो ऐसे ही नंबर्स अगर आप बहुत ज्यादा ले लेंगे तो वो आपको मैल इफेक्ट्स देंगे, और अगर आपके पास कम है, आपके चार्ट में मिसिंग है, तो आपके अंदर वो एनर्जीज मिसिंग होंगी, वहां पे आप लो हो जाएंगे. So numbers ओके actually play a very vital role in balancing your energies, because everything has a frequency in this world. हम सब 5 तत्वों से बने हैं. राइट So ये 5 जो तत्व हैं, ये एक पर्टिकुलर वाइब्रेशन, एक फ्रीक्वेंसी देते हैं. So every number likewise gives a particular vibration, gives a particular frequency. So if you're taking राइट higher frequency than which is needed in your body, or maybe in your aura, then you will have mal effects. और अगर आप कम ले रहे हैं तो ऑब्वियसली वो एनर्जीज आपकी लाइफ से मिसिंग हो जाएंगी, तो आपको करियर में ऑब्स्टिकल्स आएंगे, चाइल्ड बर्थ में डिलेज होंगे, मैरिज डिले अच्छा होगी, या फिर देयर सो मेनी थिंग्स हैपन, हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, स्ट्रेस हो सकता है. आपने 7 बहुत बारी ले लिया, यू टेकन 7 मल्टीपल टाइम्स इन योर मोबाइल नंबर, इट विल गिव यू स्ट्रेस, इट विल गिव यू डिसीट्स, लोग आपको धोखा देंगे, बैक स्टैप करेंगे. सो दिस इज ओह हाउ नंबर्स, yes, interact with each other, and they give effects accordingly. So this is very important integral aspect of our life to have correct numbers around us, especially mobile number. तो हम 24 hours मोबाइल के साथ सोते हैं, मोबाइल के साथ सुबह उठते हैं. राइट राइट। आजकल तो बहुत ज्यादा मोबाइल की यूसेज है तो वो तो है ही। एंड सिमिलरली इसी तरीके से सिग्नेचर्स का भी अहमियत रहती होगी टू शेप आवर डेफिनेटली, लाइफ। डेफिनेटली, बिकॉज सिग्नेचर्स वन, एक तो न्यूमरोलॉजिकली आपने उसका वैल्यू कैलकुलेट किया कि वो सिग्नेचर का जो टोटल है वो आपके साथ कंपैटिबल है या नहीं. इफ इट इज नॉट फ्रेंडली विद यू, द टोटल ऑफ द सिग्नेचर इज नॉट फ्रेंडली विद यू, डेफिनेटली you'll have the problems pertaining to the number that you're carrying unnecessarily. Apart from that, कई लोग डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न्स होते हैं सिग्नेचर करने के. कई लोग फ्लैट सिग्नेचर्स करते हैं, कई लोग अपवर्ड अच्छा सिग्नेचर्स करते हैं, कई लोग डॉट लगाते हैं. सो ऑल दिस हैज अ मेजर सिग्निफिकेंस इन आवर लाइफ. फॉर एग्जाम्पल, एक इंसान जो बिल्कुल फ्लैट सिग्नेचर्स करता है विद अ डॉट, that person automatically is putting a full stop in his own things. वो full stop लगा रहा है, that dot is a full stop. You call that a full stop, right? जब आप sentence राइट लिखते हैं तो उसको आप full stop बोलते हैं. So it means you are putting a full stop to your own growth, to your own path. दो आप स्टेबल रहना चाहते हैं लाइफ के अंदर, because you're doing a flat signatures, but at the same time you're putting a full stop, you are yourself stopping your growth and prosperity in life. So signatures करेक्ट करना भी आपको एक तरीके की एनर्जी देता है आपकी लाइफ के अंदर. The best way to sign is doing it in the upward way, with a line underneath, and not किसी भी अक्षर को गोल ना घुमाएं, because जब आप गोल घुमाते हैं तो आप एक दायरा क्रिएट कर देते हैं उस अल्फाबेट का, उस ओके अल्फाबेट की एनर्जी का आप एक दायरा ओके क्रिएट कर देते हैं. तो वही एनर्जी आपके ऊपर आती है, बिकॉज वो सिग्नेचर तो आपकी है, दैट इज योर इम्प्रेशन. राइट जो आप राइट साइन करते हैं वो आपकी आइडेंटिटी है. आप आधार कार्ड पे भी करते हैं, आप बैंक में भी करते हैं. एंड व्हाट इज द सिग्नेचर? बैंक में मनी ट्रांजैक्शंस हो रही हैं, आधार कार्ड इज योर आइडेंटिटी. तो जहां पे भी आप सिग्नेचर करते जा रहे हैं वहां पे आप अपनी आइडेंटिटी को छोड़ के आते हैं, राइट? बिल्कुल बिल्कुल तो अगर वो आप करेक्ट नहीं कर रहे, अगर उसको आप रॉन्ग वे से कर रहे हैं, तो आप अपनी लाइफ में उससे जुड़ी हुई ऑब्स्टिकल्स को क्रिएट करते हैं. सो बिल्कुल सिग्नेचर्स, हैविंग अ करेक्ट नेम, हैविंग अ करेक्ट मोबाइल नंबर, हैविंग अ करेक्ट
इवन आजकल हम पासपोर्ट्स पे भी बात करते हैं, क्योंकि हमारी बिजनेस डील्स भी मोबाइल पे होती हैं, हमारे रिश्तेदारों से भी बात हम मोबाइल पे करते हैं, रिलेशनशिप्स की बात भी हम मोबाइल पे करते हैं, सब कुछ तो मोबाइल पे राइट हम करते, हम सो डिजिटल, राइट। और अगर हम लैपटॉप की बात करें तो लैपटॉप पे भी हम पासवर्ड डालते हैं। अगर हम इफ यू आर अ राइट वर्किंग पर्सन तो दिन में 20-25 टाइम्स तो यू विल पुट योर पासवर्ड एंड ओपन इट, राइट। सो व्हाई नॉट हैव राइट यू नो सिग्नेचर और अ मोबाइल नंबर और योर लॉक कोड, या फिर आपका पासवर्ड जो आपके साथ फ्रेंडली हो, जो आपको बिल्कुल सपोर्ट करे आपकी लाइफ के अंदर, ना कि आपको पुल डाउन करे, ना कि आपको मैल इफेक्ट्स दे। बिकॉज ये सब चीजें हम आजकल डिजिटल बिल्कुल वर्ल्ड में सारा टाइम अपने साथ कैरी करते हैं। राइट राइट। तो ये चीजें सीखी जा सकती हैं या सिर्फ जैसे कि कंसल्टेशन से आप ठीक करा सकते सीखी भी हैं जा सकती हैं, कि बिकॉज दीज आर पार्ट ऑफ न्यूमरोलॉजी। ओके ओके राइट। सो तो आई थिंक डेफिनेटली आप सीख न्यूमरोलॉजी हैज अ सकते हैं। लॉट ऑफ ब्रांचेस। न्यूमरोलॉजी के काफी ब्रांचेस हैं आई गेस। सी इट इज लाइक अ लैंग्वेज, यू नो, जैसे स्पेनिश है, सिमिलरली न्यूमरोलॉजी की डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं, कि पाइथागोरियन न्यूमरोलॉजी है, चाइनीज न्यूमरोलॉजी है, चैंडेलियन न्यूमरोलॉजी है, स्फेरिकल न्यूमरोलॉजी। सो देयर आर डिफरेंट ओके यू नो टाइप, इट इज लाइक different राइट parts of the same, but then what I teach and why I follow is a combination of you know numerologies, Chandelian, Vedic, sorry, Chandelian, पाइथागोरियन एंड चाइनीज। जो सबकी अच्छी अच्छी बातें हैं मैंने उनको इकट्ठा जोड़ के आई राइट हैव यू नो आई हैव मेड द कोर्स कि आपको हर उसकी अच्छी चीज मिल जाए एंड यू कैन मेक योर लाइफ राइट इजियर। या ट्रू सो ट्रू। That is something similar to what I also do when teaching about the laws of the mind, you know, seeing different modalities, taking the best thing out of them and putting it together for people, you know, to make it easier for our students. So I think वो बेस्ट तरीका है एक टीचर का। नहीं तो एक बुक उठाई और पढ़ा दी उसका कोई फायदा नहीं है। The results should actually come in their life. That is the main thing. डेफिनेटली, डेफिनेटली। Right. तो आपसे भी जरूर जानना चाहूंगी कि कोई ऐसा मिरेकल आपके सामने हुआ आपकी स्टूडेंट किसी की लाइफ में बाय यूजिंग एनी ऑफ दीज टेक्निक, किस चीज से मतलब उनको फर्क पड़ा और कितनी जल्दी फर्क पड़ा, आप हमारे साथ शेयर करना चाहेंगी? डेफिनेटली मनप्रीत, आई थिंक बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज हैं, बहुत सारे सक्सेस क्लाइंट्स हैं, बहुत सारे मिरेकल्स हैं। टू स्पेसिफाई समवन्स यू नो पर्सनल इंफॉर्मेशन उतना इट शुड नॉट बी यू नो आई कांट बी डिस्क्लोजिंग, बट यस आई कैन जस्ट गिव अ सिंपल एग्जांपल। देयर वाज अ गर्ल या who later on became my student as well. She came for a general consultation, and when I looked at her name and her signature and mobile number and all these things, so I said ये सब यहाँ यहाँ change कर लो, and she was not able to you know उसकी marriage नहीं हो पा रही थी, office की promotion में obstacles थे, and main ओके issue क्या था कि जो नाम का total आ रहा था that was on a combination of Rahu and signatures का total शनि पे आ रहा था, so that was giving her energies which is not friendly with her date of birth. हमने ओके उसमें मॉडिफिकेशंस किए, मोबाइल नंबर में चेंजेस किए, डेफिनेटली सिग्नेचर्स चेंज किए, एंड आई गेव हर वेरी सिंपल रेमेडीज टू गेट रिड ऑफ नेगेटिव एनर्जीज। हमें पता ही नहीं होता कि हमारे किचन में इतनी अच्छी अच्छी हर्ब्स हैं, लाइक दालचीनी, लौंग, डे लीफ, अच्छा कॉफी पाउडर, इनका, हाँ, मैंने उसको एक कॉम्बिनेशन दिया ऑफ 7 हर्ब्स जो हमारे किचन से ही होते हैं, बिल्कुल बहुत सिंपल हर्ब्स, आपको कहीं नहीं जाना, आपको अपनी किचन की हर्ब्स को यूज करना है। एंड अगर आप देखिए पुराने जमाने में भी लोग अपने घर से ही ये सब चीजें किया करते थे, और पुराने जमाने में एक्चुअली होता क्या राइट था, हम उपला यूज करते थे, उसके ऊपर घास जलाते थे, तो उसके अंदर ऑटोमेटिकली उपला इटसेल्फ इज अ यू नो डिटॉक्सिकेशन के लिए यूज करते हैं, राइट क्लियरिंग नेगेटिविटी। तो लोगों के घरों में ये सब चीजें नहीं आया करती थी, तो अब हम सब ये अपनी पुरानी चीजें भूल चुके हैं कहीं ना कहीं। और यही पुरानी चीजें मैंने उसको कुछ 7 हर्ब्स दी उसके किचन में से ही, एंड आई टोल्ड हर टू यूज अ ब्लैक कैंडल टू गेट rid of all the negative energies and make these small changes in her life. Prescribed her 1 or 2 crystals that she could wear. Like citrine was for her relation, money and the career and relationship के लिए rose quartz, and the major part was the name correction and the signature correction, ओके जो उसकी लाइफ पे बहुत ज्यादा इम्पैक्ट किया, एंड विद इन 6 months
प्रमोशन भी मिला, Oh, मैरिज भी हो गई, एंड वेरन शी wow. कहीं पे उनकी अपनी प्रॉपर्टी बिक चुकी थी, एंड कहीं दूर दूर तक आसार नहीं थे कि क्या करेंगे, रेंट पे जाएंगे या घर लेंगे, एंड रास्ता ऐसा निकल के आया that within a span of 9 to 10 months they bought their own property also. Wow. So Wonderful. तो obviously loans है, सब कुछ है, but then she is now sorted in her life. She's got married, she has her own property, and then ऑफिस भी अच्छा जा रहा है. So this is how these, हमें पता ही नहीं होता कि हम छोटी छोटी जो अपने नाम लिखने में मिस्टेक कर रहे हैं, या हम Right. सिग्नेचर्स सही तरीके से नहीं कर रहे, या मोबाइल नंबर में हम सोच रहे हैं कि ये स्टाइल स्टेटमेंट है कि हमने बहुत सारी बार 9 ले लिया, बहुत सारी Right. 8 ले लिया. Right. तो वो हम गलतियां छोटी छोटी कर देते हैं, जिसकी वजह से हम अननेसेसरली, ना चाहते हुए भी, अपनी डेस्टिनी के अंदर ऑब्स्टिकल्स ले आते हैं. सो Right. दैट इज आवर मेन वर्क, कि बिना किसी को भटकाए, छोटी छोटी टिप्स एंड रेमेडीज से हम वी कैन मेक देयर पाथ्स इजियर. एंड दिस वाज वन ऑफ द लेटेस्ट एग्जांपल्स व्हिच आई गेव यू, बट देयर आर सो मेनी मिरेकल्स, सो मेनी सक्सेस स्टोरीज. बट ये कहना, लोग बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि ये मिरेकल्स ओवरनाइट हो जाएंगे. बट जैसे Right. आपने भी पूछा कि कब तक हो जाएगा, कब तक Right. Right. रिजल्ट आता है. सी, बिल्कुल. रिजल्ट आने के लिए बहुत सारी चीजें इंपॉर्टेंट होती है. सबसे पहले हमारा फेथ, हमारा बिलीफ. जब बहुत सिंपल एग्जांपल है, हम सबके घर में हम पाठ करते हैं, मंदिर होता है, सबके घर में पूजा करते हैं, तो हम कभी भगवान से ये नहीं बोलते कि आप कब तक दोगे. वी डू इट विद अवर utmost faith and dedication. Right. सो Right. सेम वे, अगर हम ये रेमेडीज फेथ एंड डेडिकेशन से करते हैं, तो हमें डेफिनेटली इनका रिजल्ट बहुत जल्दी मिलता है. एंड सेकेंडली, द सेकेंड थिंग इज कि अगर हम उसको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करते हैं, जितनी डीपली हम उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, उतना हमें रिजल्ट आता है. बट इतना समझना भी बहुत ज़रूरी है कि कुछ एनर्जीज, जैसे हमारे नेम के स्पेलिंग्स, हमारे सिग्नेचर के स्पेलिंग्स, हम बचपन से अपने साथ कैरी कर रहे हैं, 20 ईयर्स Right. से, 25 ईयर्स से, 30 ईयर्स से. तो उसको ओवरनाइट चेंज करना इज नॉट ईजी. Not धीरे easy. धीरे Right. you start seeing the changes. Do it with complete faith and trust is what I tell all my people who are connected to me, Right. and you see the miracles in your life. Definitely. I guess patience is the first thing. जो हर इंसान को कल्टीवेट करनी चाहिए. बिकॉज कई बार क्या होता है, हम खुद ही अपने आड़े आ जाते हैं बेसिकली. Hmm. जब हम किसी चीज को Exactly. सोचते हैं कि काम कर रही है, नहीं कर रही है, दैट इज द बिगेस्ट हिंड्रेंस, आई गेस. इट्स वंडरफुल द Correct. वर्क यू आर डूइंग. एंड एक चीज मुझे और अच्छी लगी, आपने कुछ बताया क्रिस्टल्स के बारे में. Hmm. क्रिस्टल्स का क्या महत्व है और उनकी एनर्जी से क्या होता है, ये जरूर आप बताइए हमारे दर्शकों को. जरूर बताऊंगी. क्रिस्टल्स, देखो, बहुत सिंपल सा एग्जांपल मैं आपको देती हूँ. क्रिस्टल्स होते स्टोन्स ही हैं, बट जैसे एक डिफरेंस होता है एक एजुकेटेड एंड नॉन स्किल्ड एंड अनस्किल्ड लेबर के अंदर, वही डिफरेंस होता है स्टोन एंड क्रिस्टल के अंदर. स्टोन इज अ नॉर्मल स्टोन दैट आई एम टॉकिंग ओके. अबाउट. अ स्टोन, स्टोन्स जो क्रिस्टल्स होते हैं वो भी अर्थ के अंदर से ही निकलते हैं. I'm also wearing a lot राइट. of crystals. So these are for my own आपका कुछ कनेक्शन इशू आ रहा है. hello. हाँ जी, अभी एक बार रिपीट करिए लास्ट लाइन, कुछ कनेक्शन चला गया था. अच्छा, सॉरी, मैं ये बोल रही हूँ कि क्रिस्टल्स भी अर्थ से ही बनते हैं, एंड राइट. क्रिस्टल्स एक इवॉल्व्ड एनर्जीज होती हैं. उनको, ओके. वो एक ऐसी एनर्जी होती है. अगर हम वैदिक या उस पुराने एक उस चीज की बात करें, सो दीज क्रिस्टल्स आर इवॉल्व्ड एनर्जीज, एंड इनके अंदर भी सोल होती है, क्रिस्टल्स के अंदर भी सोल होती है. एंड जो भी ओके. हमारे चक्रास होते हैं हमारी बॉडी पे, हमारे विशेस के अकॉर्डिंग मैनिफेस्ट करते हैं ये. I'll show you a very beautiful thing. I was working on crystals today itself. So see, this is a very beautiful chart if you can ओके. see. These are all the वाओ. chakras which are there in our body. These are all the chakras which are राइट. there राइट. in our body, and these are the associated crystals which work with them. So every chakra यस. of our body, though हमारी body के अंदर बहुत सब chakras भी होते हैं, there are 108 sub chakras and even more than that, but जो major chakras, जो energy centers होते हैं, वो हमारी body के अंदर 7 होते हैं. So basis the color of the crystal and the association with the respected chakra,
crystals are the easiest way, if used properly, they can help manifest your wishes. जैसे कई लोग बोलते हैं आप पुखराज पहन लो, but पुखराज is an expensive stone, not everyone can Right. afford it. So उसका alternate है कि आप citrine पहन लीजिए, you know. Okay. तो वो Okay. equally आपकी लाइफ में अच्छा काम करता है. कई लोग Okay. और भी बहुत सारे क्रिस्टल्स रेकमेंड करते हैं, तो इक्वली उसके, जैसे आप अगर आप डायमंड नहीं पहन सकते, सॉलिटेयर नहीं पहन सकते, सो यू कैन वेयर जरकॉन्स. सो crystals work on your Right. energies. They emit certain kind of vibrations. अगर हम सिंपल लैंग्वेज में समझें तो पूरा यूनिवर्स वाइब्रेशन और एनर्जी से बना हुआ है. और जो True. क्रिस्टल्स हैं, हर क्रिस्टल का एक कलर है जो कि उसने व्हाइट लाइट से ही एब्जॉर्ब किया है. व्हाइट लाइट क्या है? जो हमारे यूनिवर्स में फैली हुई है. जैसे रेनबो Right. के अंदर से 7 रंग निकलते हैं, ऐसे ही हर क्रिस्टल एक पर्टिकुलर तरीके की वाइब्रेशन को Color. अपने अंदर ट्रैप कर लेता है. Okay. राइट. तो जब वो उस इंफॉर्मेशन, उस एनर्जी को ट्रैप करता है, तो वो मिलती जुलती वाइब्रेशंस को रेडिएट करना स्टार्ट कर देता है. तो फॉर Hmm. एग्जाम्पल, मेरे को मनी से रिलेटेड इश्यूज आ रहे हैं, तो आई विल गो फॉर सिट्रीन, आई विल गो फॉर क्रिस्टल्स जो कि मेरे उस रिस्पेक्टिव चक्रा से या उस रिस्पेक्टिव इशू से मैच करते हो. जैसे रोज Hmm. क्वार्ट्ज इज अ वेरी कॉमन क्रिस्टल विच वर्क्स ऑन योर हार्ट चक्रा, कि Okay. आपको रिलेशनशिप इश्यूज आ रहे हैं Right. आपकी, पर उनको यूज करना ठीक से बहुत जरूरी है. उनको क्लीन करना, उनको Hmm. एनर्जाइज करना. ऐसे ही जेमस्टोन्स जैसे मैंने पहने हुए हैं, तो जेमस्टोन्स को भी एनर्जाइज करना, क्लीन करना इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो किसी भी तरीके का True. अगर आप क्रिस्टल लेते हैं, वो एक पर्टिकुलर Hmm. वाइब्रेशन देता है जो आपकी बॉडी के ऊपर एक्ट करती है, और इट हेल्प्स इन अट्रैक्टिंग व्हाट यू डिजायर इन योर लाइफ. Okay. वंडरफुल. ये तो एक पूरा एक अलग ही दुनिया है जिसके बारे में पता भी नहीं था. बट सुना जरूर था. बट आपसे जान के बहुत इंटरेस्ट आ रहा है इस सब में. इट्स वेरी नाइस टू नो दीज थिंग्स आर हेल्पिंग पीपल आउट. खासकर आजकल पीपल आर गोइंग थ्रू अ लॉट. अगर कोविड की बात करें तो इस ड्यूरिंग आपके भी ऑब्वियसली कुछ काम में प्रॉब्लम्स आई होंगी ड्यू टू कोविड या नहीं आई. एंड कैसा डील किया आपने ये टाइम? प्लीज लेट द व्यूअर्स नो बिकॉज दिस इज द रीजन व्हाई आई स्टार्टेड दिस इंस्पिरेशनल सीरीज टू लेट पीपल नो कि दिस इज नॉट द एंड. इट इज जस्ट अ कॉमा. लाइफ will still go on from here. तो आप उनको क्या बताएंगे? सच बोलूं तो आई थिंक ये टाइम डेफिनेटली टेस्टिंग टाइम है. ये टाइम डेफिनेटली बहुत लोगों के लिए टफ टाइम रहा है. जो लोग यहाँ से अपने घर जाना चाहते थे, या जो लोग वर्किंग थे, या बहुत सारे लोगों के लिए ये टफ टाइम रहा है. बट एट द सेम टाइम इट हैज मेड पीपल develop and work on their hidden potentials. This time had actually made people work on their things they never knew that is in them, and they have Right, come up with new ideas. right, And I right. think backbone रहा है internet. And if you see आजकल Facebook पे, social media पे, people are promoting their drawings, people are promoting their artwork, people are promoting their handmade things, people Right. are promoting so much in this time. Yeah. So I think अगर हम इस एस्पेक्ट से देखें, so it has been really a motivating journey for all of us. देखो, डिफिकल्ट टाइम्स जब Right. हम बाहर जाते हैं, जब कोविड नहीं था, तब भी हम हमेशा स्ट्रगल करते हैं. हमें काम करना है, हमें हार्डवर्क करता है, पूरा महीना आप हार्डवर्क करते हैं, एंड देन यू अर्न फॉर योर फैमिली, देन यू नो एंड तब भी हमें डिजीजेस होते हैं, तब भी हमें प्रॉब्लम्स होती हैं. बट this pandemic has actually made people more stronger, made people fight for what they Right. desire in their life. This time has actually made them, I accept that there have been stress, there has been बहुत लोग डिप्रेशन में गए, बहुत लोग स्ट्रेस में गए, but they have actually fought back. They have actually fought back, and they have realized कि अगर हम ये नहीं कर रहे, तो हमारे अंदर ये कैपेबिलिटी भी है जिसको हम ऑनलाइन प्रमोट कर सकते हैं. एंड नाउ बिल्कुल. everybody has come up with some or the other ideas which is really really appreciable, कि हर कोई Right. अपने अपने ढंग से अपना काम कर रहा है, एंड पीपल आर कमिंग बैक ऑन ट्रैक. एंड स्पेशली इन द फील्ड्स लाइक spirituality, I see a huge boom. In the past 4 months, I have been
double busy than I was earlier. You know, Oh, now I think I'm right. working from Even 6 a.m. more. to 2:30 a.m. I'm working Right, from right. 6 a.m. to 2:30 a.m. because everybody has realized that जिस दुनिया में हम भाग रहे थे, that was all a virtual world. The real बिल्कुल, world is बिल्कुल। the spiritual world. The real world is now where we are. So I think people are taking up spirituality more seriously. They're taking Right. meditation, yoga, exercises, More Ayurveda more seriously. And they're taking themselves also more seriously more कि serious. जो चीज़ों Right. उनको पता ही नहीं थी अपने बारे में, वो उस पे काम कर रहे हैं. So I बिल्कुल, think बिल्कुल। that is really commendable and appreciable for everybody across the globe. सो ट्रू। तारा जी, व्हाट आई आल्सो फील इज ये टाइम तो इनफैक्ट एक सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन का टाइम था। एंड जिन्होंने सही मायने में इस टाइम को यूज किया, आई थिंक उन्होंने पूरी जिंदगी में शायद वो सब नहीं कर पाते जो इस टाइम के ड्यूरिंग उन्होंने कर लिए, बिकॉज वी वर कट ऑफ फ्रॉम एवरीबडी। एंड इससे ये भी पता चला लाइफ कितनी मिनिमलिस्टिक सही रहती है। लोग अपने घरों में आराम से रह रहे हैं। नो, दोस बिग ब्रांड्स एंड बैनर्स, नोबडी रिक्वायर्स देम नाउ। Such a simple life, and see how happy people are in that also. So कहीं ना कहीं आई थिंक माइंडसेट से रिलेटेड ज्यादा रहा है ये, कि लोग जो सोच रहे हैं कि यस दिस कैन टेक अस फॉरवर्ड, तो वो गए हैं फॉरवर्ड। और जिन्होंने सोचा ये हमारी लाइफ का एंड है, तो फिर वही प्रॉब्लम आई। आई थिंक सो सम नेटवर्क प्रॉब्लम विद मिस तारा। We'll just wait a second, wait for her to join us again. Okay. Kuch Same here. network issues, I guess. Yeah, I think there was a We network lost issue. you for a second. Yeah, yeah. Right. So, तारा जी, I would like to know one thing, especially अगर कोई इस फील्ड में भी आने की सोचता है, राइट? तो इन्स एंड आउट्स क्या है? लोग समझते हैं कि स्पिरिचुअलिटी के लाइन में आते ही ओवरनाइट सक्सेस मिल जाएगी, राइट? खासकर इस वक्त तो बूम आया ही हुआ है स्पिरिचुअलिटी को लेके। तो आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे उन लोगों को जो आगे इस फील्ड को एज अ करियर चूज करना चाहेंगे? I think some network issues are here. Some network issues there. The voice is going Yeah. again and again. Oh, was my question clear? No, I couldn't hear you. Okay, okay. I'll repeat it. आई वॉज आस्किंग यू कि स्पिरिचुअलिटी में जैसे कि हम बात कर रहे थे, बूम आ गया आजकल, तो कई लोग इस करियर में जुड़ना चाहते हैं, दे वांट टू टेक इट फर्दर, बट पीपल यूजुअली थिंक इट्स अ केक वॉक, बहुत आसान है, घुसते ही यू विल गेट ऑल द फेम, नेम एंड मनी। बट एक्चुअल में वो इस चीज का रास्ता है कैसा, आपसे बेहतर कौन जानेगा? एंड यू कैन गाइड दोस पीपल हु आर एंटरिंग दिस लाइन, व्हाट टू Um, एक्सपेक्ट? आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा मनप्रीत, because I see people, मतलब I see young girls 20-21 years, they learn. For example, आज उन्होंने कोर्स खत्म किया and the next day they start teaching also. The next day they want to become teachers also. But राइट। मेरे ख्याल से ऐसा नहीं करना चाहिए. It is like an education. राइट, इट इज या लाइक आपकी आपकी मेहनत, क्योंकि आप जब एक स्पिरिचुअलिटी के पाथ पे आते हैं, जब आप खुद इस प्रोफेशन को चुनते हैं, तो लोग आप पे इतना ट्रस्ट करते हैं कि वो आपको राइट। अपना करियर आपके हाथ में डाल, मतलब बिल्कुल, बिल्कुल। यू बिकम इन द डिसाइडिंग पोजीशन, यू डिसाइड कि वो जॉब चूज करे या ना चूज करे। आप आपकी हाँ में उसकी हाँ होती है, और आपकी ना में उस सो ट्रू। इंसान की ना होती ना है। है। तो किसी की किस्मत, किसी का रिलेशनशिप, किसी की जिंदगी अपने हाथों में लेने से पहले मुझे ऐसा लगता है कि आप इतनी सक्षम हो जाना चाहिए आपको कि आप उस उतनी कॉन्फिडेंटली उसको हैंडल कर पाए राइट। किसी की भी लाइफ, बिकॉज यू देन बिकम, ऑब्वियसली आप क्रिएटर नहीं हैं, बट आप चैनल जरूर हैं किसी की लाइफ को बिल्कुल। रास्ता दिखाने के लिए। आप चैनल राइट। जरूर हैं, और दूसरा इंसान आप पे उतनी ट्रस्ट, उतने विश्वास से आता है कि आप जो बोलेंगे वो उसके लिए
एक सत्य वचन बन जाता है, बिल्कुल you know. बिल्कुल So we should be very careful, and it is not that easy. Lot of knowledge, lot of practice, lot of dedication is needed. जैसे हम स्कूल में बिल्कुल क्लास 1 से शुरू करके 12 तक जाते हैं, उसी तरीके से सीढ़ियां हैं जिसको हमें धीरे धीरे चढ़ना चाहिए। एंड जब राइट हमें लगे कि हम इतने केपेबल हैं कि हम किसी की डेस्टिनी या हम किसी का पाथ डिसाइड कर सकते हैं, तभी हमें उसको प्रोफेशनल लेना चाहिए। पहले हमें अपने ऊपर आई थिंक वर्क करना चाहिए। मैंने खुद अपने ऊपर जबकि ये चीज मेरे साथ बचपन 6-7 साल से जुड़ी हुई थी। व्हेन आई वाज 4 7 6 years 7 years old, then I realized that I have this gift. Then also I studied, I practiced, and till date I am doing something or the other. अभी भी बिल्कुल मेरे ऐसे कुछ 2-3 कोर्सेज चल रहे हैं जो मैं लर्न कर रही हूँ। इट इज अ कांस्टेंट स्टडी, इट इज अ कांस्टेंट ग्रोथ दैट यू work on yourself. So till the सो time ट्रू you think that you are perfect, राइट till the time you think that you are confident, you know that you can help someone, you can guide someone, you should not राइट jump into something. जब हम मेकअप भी सीखते हैं तो हम पहले थोड़ी प्रैक्टिस करते हैं, हम अपने आप को बिल्कुल एकदम इट इज समथिंग ऑफ, जितना प्रैक्टिस करते हैं, जितना मेडिटेशन करते हैं, जितना उसके ऊपर हार्ड वर्क करते हैं, उतना अच्छे से रिजल्ट निकल के आता है। तो रिजल्ट की तरफ नहीं भागना चाहिए। प्रैक्टिस और डेडिकेशन इज आई थिंक मोर इम्पोर्टेंट। आप भी समझते हो, आप खुद भी इस फील्ड से हो। इट इज मोर हाउ मच जितना आप डालोगे उतना, जितना घी डालोगे उतनी टेस्टी सब्जी बनेगी। तो पहले उसमें बिल्कुल घी डालें, अच्छे से उसको पकाएं, उसके बाद किसी को सर्व करें। राइट राइट कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है ये प्रोफेशन खास करके एक सर्विस या मिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आता है एंड इन चीजों को जितना मोनेटाइजेशन से दूर रखें पहले फर्स्ट यू वर्क ऑन दैट सर्फेस लोग मुझसे भी पूछते हैं कि मेरा पर्पस क्या है मैं हमेशा एक ही जवाब देती हूँ आप ऐसी चीज सोचो जिसके लिए अगर आपको कोई ना भी पे करे ना तो भी आप उतने पैशन से वो काम करना चाहो तो कहीं ना हम्म। कहीं मुझे लगता है खास कर ये एनर्जी वर्क स्पिरिचुअलिटी दीज आर रिलेटेड टू योर मिशंस इन लाइफ आपका जो सोल पर्पस होता एब्सोल्युटली। है एंड आप अगर आप उसे दिल से कर रहे हैं तो पैसा तो अपने आप आएगा ही बाद में अपने आप आता है आपके पास तो वो इतना बड़ा इश्यू नहीं होता मेन होता है कि पुट इन द हार्ड वर्क एंड दैट इज सो ट्रू जो आपने अभी पर्सपेक्टिव बताया इट्स वंडरफुल कि देखिए एवरीबडी लाइफ इज इन योर हैंड एंड उसको हम्म। संभाल के चलना बहुत जरूरी है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट सो वंडरफुल वर्क यू आर डूइंग इंडिया में तो आप छा चुकी हैं तो आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं अब इससे आगे कहाँ मनप्रीत जी, इससे आगे रास्ता अपने आप आई थिंक डेस्टिनी डिसाइड करती है कि आपको कहाँ जाना है। इवन अगर मैं प्लान बना भी लूंगी, तो जहाँ मुझे मेरी डेस्टिनी लेके जाना है वो मुझे डेफिनेटली वहां लेके जाएगी। बट मेन पर्पस ये है, जितने लोगों के हेल्प कर सकूं, जितने लोगों को गाइड कर सकूं, जितने लोगों के चेहरों पे मुस्कुराहट ला सकूं, वो ही मेरा एम है। और आई थिंक वही मुझे अपने आप, उन्हीं की ब्लेसिंग्स, उन्हीं का प्यार ऑटोमेटिकली आगे लेके जाता रहता है। बिल्कुल दो सेंटर फॉर ऑकल्ट जो है, इट हैज बिकम ग्लोबल। ग्लोबली स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़ते हैं, ग्लोबली हमारे साथ काम लर्न करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, राइट सर्टिफाई होते हैं यहाँ से। बट सबसे ज्यादा खुशी तब मिलती है जब वो वापस आके बोलते हैं ना कि मैम, आपने ये सिखाया था और मैंने अपने उसका लाइफ काम चेंज किया एंड उसका काम बन गया। सो आई थिंक दैट इज द बेस्ट हैप्पीनेस। और वो ही हर जगह अपने आप स्प्रेड होती है और वही आपको आगे लेके जाती है। मैं कभी भी बहुत ज्यादा फ्यूचरिस्टिक गोल्स नहीं बनाती। दो आई राइट थिंक पॉजिटिव, आई वांट टू, एवरीबडी वांट्स टू ग्रो in their life, but then the राइट main motto is to bring happiness and joy to as much people as I can, across the globe. so wonderful and such beautiful thoughts you have and definitely जाने से पहले मैं आपसे ये जरूर चाहूंगी कि आप सारे व्यूअर्स को कुछ गोल्डन नगेट जरूर देके जाएं फॉर देयर लाइफ और आप उनको क्या कहना चाहेंगे अगर संक्षेप में कुछ बोलना हो आगे बढ़ने के लिए या इस सिचुएशन को देखते हुए मैं सिर्फ एक छोटी सी बात ये बोलूंगी, जो हमारी किस्मत में होता है वो हमारी किस्मत में हमारे अपने कर्म लेके आते हैं। किसी का बुरा मत करो, किसी का बुरा मत सोचो, अच्छा करो, अच्छा सोचते जाओ ऑटोमेटिकली। और अगर आपकी लाइफ में दुख भी आता है
तो उसको खुशी से अपनाओ, खुशी से एक्सेप्ट करो। और जब आप एक्सेप्टेंस मोड में आ जाते हो, जब आप एक्सेप्टेंस Right. एंड ग्रैटिट्यूड के मोड में आ जाते हो, तो आपको कोई तकलीफ, कोई दुख नीचे नहीं ला सकता। वो सब धीरे धीरे ऑटोमेटिकली कटता जाता है और आप हमेशा एक खुशी के मोड में रहते हो। तो जितना खुश रहेंगे, जितना पॉजिटिव रहेंगे, उतने सुखी रहेंगे, उतने समृद्ध रहेंगे। बिल्कुल, बिल्कुल. Such beautiful thoughts you have, Taraji, and I thoroughly enjoyed this interview. I'm telling you from the depth of my heart. And सेम हियर, आपकी सेम lovely हियर। vibes जरूर सब तक पहुंच रही होंगी. And आज से अलविदा लेने को मन तो नहीं कर रहा, बट आज का सेशन एंड करना जरूर पड़ेगा. फिर मिलेंगे दोबारा जब आप अपने नेक्स्ट लेवल तक पहुंच चुकी होंगी. होपिंग फॉर दैट डे सून. Thank you so much, Manpreet. Thank you. It was a pleasure having, with you, and I really loved the session. Thank you so much, and all the best. Everybody stay blessed and stay happy. Thank you so much. Okay, bye bye. Bye bye. So, thank you all the viewers who have been watching us today in today's live telecast. It was an amazing interview. मुझे तो बहुत मजा आया. आपको आया कि नहीं? प्लीज राइट डाउन इन द कमेंट्स बिलो. और मैं आपको ये जरूर बताना चाहूंगी, नेक्स्ट हमारा इंटरव्यू और भी बहुत ही खास इंसान के साथ है. कौन है, क्या करते हैं, ये अभी आने वाला टाइम बताएगा. तब तक के लिए प्लीज इस पेज को लाइक जरूर करिएगा, ताकि आप नोटिफाई हो सके जब हमारा नेक्स्ट इंटरव्यू होगा और आपको जरूर इंस्पायर करेगा. सो ऑलवेज बी रेडी टू एनर्जाइज योर माइंड विद मनप्रीत कौर. बाय बाय टू एवरीवन. लव एंड लाइट फ्रॉम मनप्रीत कौर.